You have to prepare NCERT smartly, efficiently. Blindly follow नहीं करना है. Now, which NCERT would be followed and how you should be followed? There are two questions. So let's make a list of NCERT. I'm sure most of you know that, but let's repeat that. So अगर हमको 90 days में, now remember, there is a basic approach here that I'm assuming that you are studying 4 to 5 days every day separately for NCERT, तभी ये 90 days में हो पाएगा. So that means 4 to 5 hours means effectively 400 to 450 hours. तो जो अभी हमारे लिए मुश्किल भी है बट पॉसिबल भी है, डिपेंड्स. तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग, आई वुड से दैट बेसिक एनसीईआरटी अप्रोच आपका रेडी होना चाहिए. विच एनसीईआरटी? क्लास 11-12. पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट की कुछ 3-4 चैप्टर्स हैं, बट मोस्टली दीज आर 4 एनसीईआरटीज दैट हैव टू बी फॉलोड. अब ये एनसीईआरटीज को, लेट्स से ये आपकी एनसीईआरटी, आप उसको कैसे अप्रोच करोगे? मे बी बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करते हैं, बट इसको रैंडमली नहीं पढ़ना है. You have to understand the utility of that. The first thing that you will do कि आप इस NCERT को उठाओगे और इसको syllabus से link करोगे. You will go and see the syllabus and thereby you know the relevance of that topic in the exam. वो पहला rule है. That is the first rule you should apply. So when you are doing that, और मैं अभी आपको link करूंगा और PYQs. Second would be linking with PYQs. Then one more thing that you can do, that जो NCERT आप पढ़ रहे हो, इस पे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. बट रिमेंबर व्हाट वी हैव फाउंड दैट इसको यूज कैसे करना है. एंड हियर यू कैन मेक नोट्स विच आर थीम वाइज. डोंट मेक नोट्स. नाउ लेट्स से मैंने ये टॉपिक उठाया और थीम मेरा एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. वो मेरा थीम है, बट पूरा चैप्टर ही एलपीजी है. सो टेक्निकली इफ यू आर मेकिंग नोट्स फॉर एलपीजी, यू आर प्रिपेयरिंग द थीम. क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है. फर्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज अ थीम. So instead of reading the entire book, every chapter, the first rule of NCERT is कि आप syllabus से link करिए and see if it is mentioned in the syllabus or not, that topic. The second is that if you are preparing notes, prepare it theme wise. Development एक theme हो सकता है, nationalism एक theme हो सकता है, LPG एक theme हो सकता है, Jainism, Buddhism could be a theme in the history, right? So you can, or sub theme, you can decide that. Because questions in the prelims as well as in mains, they are asked on the themes. Themes पे सवाल पूछते हैं. Then the second rule would, इसके अलावा जो next rule होगा, link, यानी first is syllabus, second is आप theme wise notes बनाइए अगर बनाते हैं तो, and always link with PYQs. Previous year question से भी link करिए. Now we will reach a stage where now previous year question for prelims also, previous year question for mains also. So you should have understanding that what kind of questions have been asked. Now let me share. Now let's say हम first month में, I always advise start with economy polity. क्यों मैं कहता हूँ economy polity से start करिए? Because when you're studying economy and polity, you're also covering the concept as well as you're linking with current. ठीक है? So for example, हमारा starting का month हमने first month I said I'll do polity economy. Then second month history बड़ा है तो हम history करेंगे. And the last month I will do is geography. Now here I'm assuming that you're investing 4 to 5 hours per day. अब अगर आप 4-5 आवर नहीं देते हो, 2 घंटे देते हो, automatically this journey will stretch to 4-5-6 months, 5 months, 6 months. But don't worry, whatever effort you're doing in NCERT, that will bring maximum outcome in the preparation process. आपको maximum outcome मिलेगा. जिन बच्चों का prelims निकलता है, मैं पहला रूल यही पूछता हूँ, how many NCERTs have you read? How many times? Did you link with PYQs? तो 90% लोगों का आंसर नेगेटिव होता है. पहला चीज ही डायग्नोज हो जाता है प्रॉब्लम कहां है. कॉन्सेप्चुअली आप साउंड नहीं हो. एंड इन दीज सोर्सेज, अगर यूपीएससी क्वेश्चन आता है, इफ यू आर गेटिंग प्रीलिम्स और द मेंस क्वेश्चन फ्रॉम दीज सोर्सेज, द 11th-12th एनसीईआरटी, तो आपका एक्यूरेसी 90% होना चाहिए. पॉलिटी का क्वेश्चन एनसीईआरटी गलत नहीं कर सकते हो. इट वुड बी ब्लास्फेमी. इकोनॉमी का क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हो कॉन्सेप्ट का. अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कोई कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई पे कोई क्वेश्चन है, एंड दैट इज कवर्ड इन द एनसीईआरटी, यू कांट मेक सच मिस्टेक्स. एंड इफ यू आर मेकिंग इट, यू आर लूजिंग द कंपटीशन. आप कंपटीशन से प्रीलिम से बाहर निकल जाओगे. तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट 90% एक्यूरेसी, बिकॉज यू कांट कंट्रोल द आउटकम ऑफ अदर एरियाज. करंट अफेयर इज ओशन, आप नहीं पढ़ सकते हो. बट हियर
एंड एवरीबडी इन इंडिया इज स्टडिंग दैट. पूरे भारत में सभी लोग इस एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं. यूपीएससी इवन कांट चेंज दैट इंफॉर्मेशन. एनसीईआरटी एंड इग्नू, दीज आर टू बिगेस्ट सोर्सेस ऑफ प्रिपरेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लोग फॉलो करें तो दे विल एक्चुअली ओवरकम ऑल द मेजर हर्डल्स. वो गाइड और मटेरियल और कंटेंट क्रिएशन वो तो मार्केट का डिमांड सप्लाई के हिसाब से. अब शॉर्ट एनसीईआरटी का नोट चाहिए तो 5 पेज का नोट बना के आपको दे दिया. पूरा एक एनसीईआरटी की शॉर्ट नोट्स की समरी दे दी. माइंड मैप बना दिया. माइंड मैप क्या है? इसलिए फ्लो चार्ट है. आपको वो फ्लैश कार्ड बना दिए, थीम्स का लिस्ट बना दिया. तो ये क्या है? ये मार्केट के सर्वाइवल टैक्टिक्स है. एज एन एस्पिरेंट आप वो मेहनत करना नहीं चाहते हो. आप कहते हो छोड़ो, कोर क्यों पढ़े, सीधा हम समरी पढ़ लेते हैं. बट आपके बेसिक्स क्लियर होते नहीं है. ओके, सो दीज आर थिंग्स दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉलिटी इकोनॉमी फॉर कॉन्सेप्चुअल बेसिस. हिस्ट्री ज्योग्राफी, इंटायर सिलेबस ऑफ यूपीएससी हिस्ट्री ज्योग्राफी से कवर हो जाता है. कुछ ऊपर नीचे आएगा, इट कैन बी कवर्ड फ्रॉम द क्लास नोट्स. उसके बियॉन्ड भी आप स्किप कर सकते हो. आई नो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ा है, दे हैव क्वालिफाइड विद गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस. तो वैल्यूएशन करने में कोई बुराई नहीं है. नाउ लेट्स से क्लास 11th एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. हमारे पास ये हमारे की कॉन्सेप्ट्स हैं. नाउ दीज आर चैप्टर्स. आई एम जस्ट लिस्टेड द चैप्टर्स 1 2 3 4 5. नाउ यू कैन आल्सो लिंक विद पीवाईक्यूज. यू कैन लिंक एंड सी कि भी कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं. प्रीएम्बल से क्वेश्चन एवरी सेकंड ईयर यू गेट क्वेश्चंस. आपको हर एरिया से यहाँ क्वेश्चन मिला है. यू माइट से दैट सर ये तो लक्ष्मीकांत में भी है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट द कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग कवर्ड हियर. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. हो सकता है कि एनसीईआरटी में दे हैव कवर्ड एट बेसिक लेवल, बट दे हैव कवर्ड टू द एक्सटेंट व्हिच विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द यूपीएससी. ठीक है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, अभी आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसकी क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, स्केलेटल पता होना चाहिए. एनसीईआरटी विल हेल्प यू इन डेवलपिंग दैट स्केलेटल. द सेम थिंग विल अप्लाई इन फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसी किताब है जो नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते हैं, बट इट हैज कॉन्सेप्ट्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस. ये चैप्टर वाइज है ना, थोड़ी हैवी हो जाता है, बट इन रिसेंट टाइम व्हाट आई हैव सीन दैट दिस इज वेरी हेल्पफुल इन एथिक्स पेपर्स. एथिक्स पेपर में हेल्प करती है. अभी मत करिएगा, इसको बाद में कर सकते हैं. और यहां से आपको मेंस के कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे. वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सेकुलरिज्म. अगेन सेकुलरिज्म क्लास में पढ़ाया जाता है, बट द लैंग्वेज इज ल्यूसिड, सिंपल टू द पॉइंट. और आपको अच्छे डेफिनेशन मिल जाएंगे, अच्छे कीवर्ड मिल जाएंगे, अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे. एंड देयर इज नो पैरेलल ऑफ दैट. उससे बेटर पैरेलल आपको किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा. कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आईआर के लिए. नाउ व्हेन यू गो थ्रू दैट यू विल गेट लॉट ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडे will have a history. USA USSR की rivalry का आपको आइडिया मिल जाएगा. Then that will help you to understand the current this conflict better. Again globalization. और यहाँ पे आप देखोगे मेन से क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे. Again you can't say in entirety that यहाँ से, but they will help you in developing that base. Now all these topics are covered in the class also, but NCERTs will help you to understand this topic more in a more lucid manner. Economic development, इस पे आप देखो पीवाईक्यूज आते हैं. ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो कहां से कम आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से तो काफी आते हैं. ओके, यू कैन you'll get questions on that. Then macroeconomics, direct questions you get. For example, we have covered national income, GDP deflator पे क्वेश्चन आ चुका है. नेशनल इनकम में क्वेश्चन बेसिक आ चुके हैं. 13 में नेशनल इनकम में क्वेश्चन था. बैंक मनी इन बैंकिंग, रेपो, रिवर्स रेपो बहुत बार आ चुका है. रिपीटेड कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं हो रहा है तो थीम रिपीट हो रहा है. इफ देयर इज नो डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आर बीइंग आस्क्ड. अगेन एक बेसिक लेवल तक ही यहाँ पे होगा. दीज आर कवर्ड इन द क्लास ऑल्सो, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दे विल हेल्प यू एज अ प्राइमरी सोर्स. इन हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी प्लस द थीम्स वन बहुत जरूरी है, दोनों किताब. यू कैन लिंक, यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. अच्छा, मैं ये कहता हूं कि अगर यहाँ से नहीं भी आया तो उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं कर सकते हैं. वी डोंट नीड टू डू दैट. दूसरा, व्हेन यू आर रीडिंग द एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो 3 रीडिंग अप्रोच रखो एंड स्टडी एज इफ यू आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम. Do in a mission mode approach. First reading like a novel. Second reading पूरा एक आइडिया लेके हाईलाइट करो कीवर्ड, डेफिनेशंस. You will find a lot of good substance material for your answer writing. बहुत अच्छा मिलेगा आपको. Good example, good fact. NCERT अपडेटेड नहीं है तो उसमें फैक्ट डेटा थोड़ा ओल्ड मिलेगा, बट ठीक है, that's okay. At least you will understand.
दे आर मोर कंसर्न अबाउट यू डेवलपिंग द कॉन्सेप्चुअल बेस. ठीक है, मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा, यू कैन ऑलरेडी सी, मैं ये नहीं कहता हूं, बट आपका थॉट प्रोसेस, आपकी आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें, आई विल शेयर दिस विद यू ऑल आफ्टर अ व्हाइल. तो हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको आप देखो कि बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के, और यहाँ मैंने एक एक दो एग्जांपल डाले हैं बिकॉज ये भर जाएगा एग्जांपल से. 1 or 2 एग्जांपल्स आई पुट रीसेंट 4-5 साल के क्वेश्चंस डाले हैं. एंड इफ यू डू दिस, तो आपके यूटिलिटी ऑफ द एनसीईआरटी आपको समझ में आएगा. एंड इंटीग्रेट विद द क्लास नोट्स. जब ये पक्का हो जाएगा, देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल. कट ऑफ लिमिटेड है बेटा, 45 मार्क्स लाना है. आई नो पीपल जिन्होंने सिर्फ स्टैटिक पढ़ के एग्जाम निकाला है. ठीक है, तो द 4 एनसीईआरटीज ऑफ ज्योग्राफी, 7 एनसीईआरटीज ऑफ हिस्ट्री, 2 एनसीईआरटीज ऑफ इकोनॉमी, 2 एनसीईआरटीज और 2 or 3 एनसीईआरटीज ऑफ पॉलिटी एंड आईआर. दीज आर प्राइमरली दैट हैव टू बी कवर्ड. ठीक है, उसके बाद आप बहुत आसानी से इस पे हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट लगा रहे हैं, तो यू नो समरीज आप बना सकते हो रिवीजन के लिए. बट ये है, इट इज टू हैवी, बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी पॉलिटी की एनसीईआरटी हमने क्लास में कवर कर ली है. हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग एनसीईआरटी तो कवर करते ही हैं. तो मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटीज हैव बीन कवर्ड इवन बाय प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन द क्लास. जैसे मैं तो एनसीईआरटी का एक लाइन नहीं छोड़ता हूँ. आई डोंट इवन स्किप अ सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम इकोनॉमिक सेक्शन. 9-10 का भी कवर कराता हूँ, मतलब आपके नोट्स में 9-10 के भी सारे एनसीईआरटी के इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो ये बात का आपको ध्यान रखना है. एंड डू दिस, डू इट स्मार्टली, बी वेरी कॉन्शियस कि एनसीईआरटी हमको एग्जाम निकालने के लिए यूज करना है. डोंट स्टडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, इट विल नॉट गिव यू द राइट आउटकम. ठीक है ना.